So I'll तो ऐसे start भी the जान लेते recording. हैं. So I'll start the recording so that it will be very helpful, for your revision purpose. And this channel I'll make private. I don't want unnecessary other people to have a look. Whoever wants to join, I mean it's a free. अगर कोई और भी online आके पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, उसमें कोई problem नहीं है. Hey Shailesh. So like what we do, whatever we discuss, we always have a kind of revision. Okay, so let's quickly revise and understand component and understand the folder structure. So far there are 3 classes for Angular and JavaScript basics we have completed. Till there Aman was there, and after that we moved to Angular. So we'll talk about the Angular. Okay, alternate day we'll talk about the Angular, and one day we'll talk about the programming skills. Okay, which was the request from Sales. Okay, so we have completed 5-6 questions. Sooner or later, definitely it's going to take time. It's because it's not going to happen in a day. But like we are all committed for coming next 6 months, so you will be in a position to crack any questions. Okay, at a fresher level, you will be able to crack any programming question. That's the another idea. Having said that, now let's start about the Angular. Okay, so make it interactive, because already I have told what is Angular, why we need Angular, and what are the folder structure of Angular. All these things has been covered. But since Aman was not there, and it's not a 50 student, it's only 5 people. So let's revise everything and then try to explain what is component and how we will create a component, and then how to set a style sheet inside a component, and how to bind the data. So currently, whatever data we are binding in our last class, that is not coming through API. Okay, so your API are ready already. We have completed our Spring Boot. So your APIs are ready. Yes or no? Correct? Yes. Yes. Your APIs are ready. Now we are creating a framework. Rather than using the Postman, we will use those framework. Okay, and we'll use those client application. And the client application is nothing but our browser and our Angular application. So the call will be go to guys. I'm getting a background noise. Not from me, sir. So I mean, It's from Balendra Kumar, sir. hey Varisha, thanks for joining. Sir, Sanskriti, I think she has some issues to join. So वो Varisha issues नहीं call रहने हैं ना, वो issues जितने कम होंगे उतना अच्छा है हम लोग का. ठीक है, anyway, no issue. आज हम कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हैं. आज हम केवल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑलरेडी सारी चीजें कवर हो गई हैं. स्पेशली ये अमन के लिए ही है. अगर किसी को लगे कि उसको ये पता है तो ही कैन ड्रॉप. So we'll start like already our APIs are ready. Our Spring Boot application is ready. At least we are able to insert the record. We are able to fetch the record. Correct. Now we are using Postman. I want to replace the Postman, and I want to call this from a client application. So client application which we are going to create is the Angular. Now talk about the Angular. Already you guys know what is the difference between Angular and Angular JS. Okay, so there were very confusion. So Angular is different and Angular JS is different. So Angular is just rewritten of Angular JS. So Angular JS was plain JavaScript. Okay, but Angular is written on the TypeScript, and we all know what is a TypeScript. TypeScript class I'm going to take, or 2 class of TypeScript I will take. But before that, we know to bring the object orientation in our JavaScript, we use TypeScript. Correct? This is clear to everybody. Okay, because if TypeScript is not there, you cannot use a keyword called class. Okay, so if you have to use the keyword called class, and if you have used the inheritance, or if you have to use any no object oriented stuff, so you have to use the TypeScript. Correct? And the basic bone of your Angular is TypeScript along with the Node.js. Correct? So we all know how to install the Angular application. Aman, have you gone through our recorded video where we have explained how to install the Angular?
यस सर, मैंने देखी थी वो वीडियो यूट्यूब पे, और उसी को देख के मैंने अपने में नोड जेएस एनपीएम हाँ एंड एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल भी हाँ, किया आई था। रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने उसको किया था। जस्ट अ सेकंड ना। अमन, हाँ भाई, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हारी बहुत ज्यादा वो है। कौन है यार ये, बारिश कौन बस आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है वहां पे। ओके, तो आपने आपने एंगुलर इंस्टॉल कर लिया, आपने एंगुलर इंस्टॉल कर लिया, तो एंगुलर इंस्टॉल करते वक्त जस्ट जस्ट हैव ए क्विक रिवीजन। आपको क्या करना है कि नोड नोड जेएस इंस्टॉल करना है। नोड किसी मशीन पे इंस्टॉल है या नहीं, अगर हमको चेक करना है तो विच कमांड वी रन, node hyphen version, node space वर्जन। hyphen version, correct? And whenever we install node, automatically it will install the node package एनपीएम। manager. So what is node package manager? We all know that node package manager is nothing. It's so to understand this, the analogy, it's like your pom.xml. Just compare this from पॉम Spring डॉट Boot एक्सएमएल pom.xml. फ्रॉम। So whatever libraries, whatever framework you require for your Angular application, that will come from your npm. And to run that command is npm install. Okay, so whenever, so you will go to the root directory of your application and you will run npm install. It will start installing all the stuff which are mentioned in the package.json. So whatever is available in package.json, it will start installing. And there is a folder called node underscore module. Okay, so I'll explain the folder structure. I think I have explained this for Varisha and everyone except Aman, and that video is not there. So might be Aman has not gone through. So I'll cover that, and this is a revision for everybody. So now we are clear what is package.json, what is npm install, what is npm, and what is node underscore module. These four things is clear to everybody. Yes, yes, no. Yes, sir. So you can in chat also you can mention yes, yeah, no. Sorry, sir, my mic is not. Who is this? VK mic is not correct. Okay, so you can ping here. Be on mute, and here you can ping yes, no, so that I'll come to know you are with me. You are following this. Okay, if there any issue, then again I can repeat, or you can refer the recording. So we know what is node module. We know what is package.json. We know what is npm install and what is npm. तो npm को हम separate install नहीं करते हैं. Whenever we'll install our node.js, it will start installing the npm. Okay, now how to install the Angular. So there are different way to work on Angular, but whenever we develop any application, so I have told there are boilerplate code. So who will generate those boilerplate code for us? Angular CLI will does all those things for us. So how to install Angular CLI? Angular CLI itself is a package. Okay, it's a no, and that will install through npm. So we have installed the Angular CLI. So how we have installed the Angular CLI? npm install @ Angular CLI. Correct. So we'll start installing. So once your Angular CLI is installed, so the advantage of Angular CLI is, today I will show you, without Angular CLI, if you are going to create a component, you have to create n number of files manually. But if Angular CLI is installed in your machine and you are working on Angular application, it's a very easy, to get all those things done for you. So that is called the Angular CLI. And it's not only particular about the Angular, but nowadays for all the modern application, which have any sort of cloud connection or anything, they provide a CLI also. Even your Spring Boot application, there are CLI. Through CLI only you can generate your Spring Boot application. Not only the Spring Boot application, but your C# application also, there are CLIs. So most of the time CLI is nothing but we call a common command line interface. Okay, through interface you can generate all the modern application. They have a CLI. So it's not only for Angular. If you want to connect with Azure, or if you want to connect with PCF, or if you want to connect with AWS, so every framework nowadays provide CLI.
Okay, so similarly, we have a CLI for Angular so that your boilerplate code will be generated. How? That we'll see in few minutes. Okay, so now Node is there, npm install is there, and Angular is there. Okay, so we have to create a first project. Okay, so to create a project itself, it needs a lot of configuration. It's not a lot of configuration, and nowadays the frameworks are having the opinionated view. So when any frameworks has a opinionated view, it does lot of configuration for you. It will create lot of configuration file. It will create lot of folder. It will provide you the testing framework. So just recall how we have created our Spring Boot application. We have created our Spring Boot application through spring.io. If you guys remember, okay, we are going spring.io, and there we are selecting what dependency we need, and then it will allow you to download a zip file. And once you will download your zip file, you can import your application. Okay, and then it will do all the magic, and you'll see there is a src folder. Okay, there is a package name, there is a test folder, and all the dependency, everything will come. Same kind of thing Angular CLI will provide for you. Okay, so there is a command to generate, and that command, anyone can tell me what was that command? ng new and your application name. So as and when you will write ng new and whatever is application you want to create. So we want to create a student management system, correct? We want to create a student management system. So in our previous recorded video, you might have seen that we have created ng new and our application name. Then it has created a lot of stuff. Okay, it has created a lot of stuff. So I think that part is missing for Aman. So we'll try to understand one more time the folder structure. सर मैंने वरीशा, संस्कृति और बलेंद्र के साथ मीट कॉल करके वो चीजें कवर करने की कोशिश की थी, उन्होंने समझाया था, तो समझ में आ गया था. वेरी गुड. बट एक बार इसको कर लेते हैं ताकि वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में रहे, आगे आप लोग उसको रिफर कर लेंगे. ओके, सो इसमें एप्लीकेशन कैसे ओपन करना होता है? माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? नॉट येट, अभी नहीं सर, नॉट येट. अभी दिख रहा है क्या? यस सर, इट इज विजिबल. ओके, तो मैंने बताया कि एप्लीकेशन आपने ng new से आपने एप्लीकेशन बना लिया. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. देखो ये सब ना समझ में आना चाहिए, तभी फायदा है. अदरवाइज तो सारी चीजें बुक्स में अवेलेबल हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, वहाँ पे भी वही सब कुछ बताया जाता है. बट हम बता रहे हैं तो दैट शुड गो टू इन योर ब्रेन, देन देयर इज एडवांटेज. अदरवाइज फिर फायदा नहीं है उतना. ओके, तो जस्ट इसको आप लोग अंडरस्टैंड करिए कि परमानेंट मेमोरी में आपके चला जाए. तो हमने बताया था कि फाइल और ओपन फोल्डर लोकेशन से जहाँ पे भी हमने इसको डाउनलोड किया है, जैसे हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसको ओपन करते हैं, करेक्ट? यस सर. तो ऐसे ओपन करना. और भी बहुत सारे तरीके होते हैं. एक तरीका सॉलिड समझिए, फिर उसके 10 तरीके होते हैं कैसे ओपन करना, कैसे भी कर सकते हैं. ये हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है. जब हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया है तो मैंने बताया कि नोड मॉड्यूल्स क्या है, करेक्ट ना? हमने यहाँ से शुरुआत की थी. नोड मॉड्यूल क्या है? जनरली ये जब हम कोई एंगुलर का एप्लीकेशन अगर गिट से इंस्टॉल करेंगे तो ये रन टाइम पे ये सारी चीजें जब अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तब ये डाउनलोड होती है. बिल्ड करने का मतलब package.json के अंदर जो चीजें है ना, वो सारी डाउनलोड होकर के यहाँ पे आती है. ये सबको क्लियर है? नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल. यस सर. ठीक है. फिर दूसरा क्या है? एसआरसी है. ये इसके अंदर अभी हम जाएंगे. अभी बाहर की फाइल्स को समझ लेते हैं, इसके बाहर की क्या फाइल्स हैं. तो इसके बाहर क्या होता है? editor.config. अच्छा, editor.config भी अगर इस एप्लीकेशन को आप इसमें नहीं ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं ओपन करेंगे, तो ये फाइल अवेलेबल नहीं होगी. ये आप लोग देख लीजिएगा. आई थिंक 1-2 लोगों से मैंने देखा भी था कि ये फाइल अवेलेबल नहीं रहती है. दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू योर विजुअल स्टूडियो कोड. इसका आपके एप्लीकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? इसका एंगुलर से कोई लेना देना नहीं है. क्लियर है? अच्छा, गिट की फाइल है. गिट की फाइल क्या होती है? आजकल के जितने भी एडवांस फ्रेमवर्क हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोस कीवर्ड व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. एक तो मैंने बॉयलर प्लेट
यूज किया, बॉयलर प्लेट। सर ये दूसरा स्टूडियो के लिए दिया है हाँ सर, ये हम एडिटर के लिए दिया है ओनली, हमारे प्रोजेक्ट के लिए योजना नहीं होगा सर ये। नहीं नहीं, अभी आपको नहीं यूज करना है, वो बहुत जगह यूज किया जाता है बट आपको नहीं यूज करना है। जब आप नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो एडिटर कॉन्फ़िग आपको नहीं होगा। आप एक एनजी क्रिएट और बना करके देखिए, ये एडिटर कॉन्फ़िग नहीं आएगी आपके पास। पैरेलली आप अपने मशीन पे बनाइए। मैंने आपको एक टेस्ट बनाया था ना, तो टेस्ट 1 बनाइए, एनजी न्यू और टेस्ट 1 बनाइए, और जो फाइल जब जनरेट होती है उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन मत करिए, देन सी कि ये फाइल वहां पे है या नहीं है। git ignore होता है, git ignore is there. So two things I am talking about, एक तो boilerplate code और दूसरा opinionated view. So nowadays all the frameworks are having their own opinion. They understand that you are developing an application, so what you will need in future, and how they decide which kind of dependency you are adding. Okay, you remember in our Spring Boot application in form.xml, as and when we have added web, automatically we have added only one dependency, but there were more than 40-50 dependencies got downloaded, because they assume that if you are using a MVC application, definitely you will need a Tomcat server, definitely you will need a unit test, definitely you will need a Git. So all those things they automatically download and they do it for you. That's what we say, that these are the opinionated, they have their own opinion. Correct ना? तो इसी तरीके से जो हमारा एंगुलर का, ये जो एंगुलर है हमारा, उसको पता है कि यार ये बंदा कभी गिट पे काम करेगा, तो गिट पे अगर ये काम करेगा तो क्यों ना हम इसके लिए गिट की एक फाइल बना दें। ठीक है, अदरवाइज आपको मैनुअली बनाना पड़ता है वो सारी चीजें, तो ये गिट इग्नोर बनाता है। ठीक है, एंगुलर डॉट जेएसएन क्या होता है? अब एंगुलर डॉट जेएसएन आपके एंगुलर सीएलआई के लिए, एंगुलर सीएलआई कमांड हम चलाते हैं। सो टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन, whenever I'm saying basic information, supported information, whatever your Angular CLI needs, that come from this angular.json. Correct? क्या हमारा इंडेक्स क्या होगा, हमारा मेन क्या होगा, ऐप क्या होगा, एसआरसी क्या होगा, प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर जो ये बन के आया है ना, वो इसी फाइल की वजह से आता है। ऐसा आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा, और ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप इस स्ट्रक्चर को चेंज करें। बट सपोज रेयर आप दे रेयरेस्ट सिचुएशन, अगर आप चाहते हैं कि एसआरसी के कोई XYZ यहाँ पे हो, उसके अंदर हमारा एसआरसी हो, तो अगर उस तरीके की चीजें आपको करनी होगी तो यहाँ पे चेंज किया जाता है angular.json में। करेक्ट? क्योंकि एंगुलर को भी तो कोई इंफॉर्मेशन देगा ना कि इसको कैसे बनाना है, तो एंगुलर CLI को इंफॉर्मेशन angular.json से मिलता है, और एज ए डेवलपर आपको कभी इस पे कुछ काम नहीं करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये एसआरसी के बाहर जितनी सारी फाइल्स है ना, वो बस सपोर्टेड फाइल होती हैं। जब ये एप्लीकेशन प्रोडक्शन में डिप्लॉय होगा तो ये कोई भी चीज वहां पे नहीं रहेगी। प्रोडक्शन में जो कोड हम डिप्लॉय करते हैं, ये एसआरसी के अंदर का जो होता है वो डिप्लॉय करते हैं। ये सेवल केवल आपके बंडलिंग के लिए और बिल्डिंग के लिए यूज होता है। तो 3 टर्म होते हैं, बिल्ड करना, बंडल करना और उसको डिप्लॉय करना। तो जब भी हम एंगुलर करते हैं वो ये सारी चीजें होती हैं, बिल्ड, बंडल, डिप्लॉय, वो हम बताएंगे, बट नेम से ही बहुत सारा इसमें एक्सप्लेनेशन है कि ये करता क्या क्या है। ठीक है? हेलो सर, अगर जो हमारे मतलब हमारे जो टीम के जो डिप्लॉयमेंट में होंगे टीम के, अगर उन्हें हम अब ये फाइल देंगे तो उसके साथ तो ये ऑटोमेटिकली ये फाइल चली ही जाएंगी, एंगुलर कर्मा एंड पैकेज वाला। नहीं नहीं, नहीं कोड देंगे तो चली जाएंगी, बट जो हम इसीलिए जब हम कोड को कमिट करते हैं ना, जब गिट, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, गिट बताया नहीं हूँ, गिट भी हम बताएंगे, इसीलिए हमने इसको 6 मंथ का टाइम स्पेंड ले लिया है। गिट बताएंगे तो गिट में सारी चीजें नहीं डाली जाती हैं, इसीलिए गिट जब हम करते हैं तो गिट में कॉन्सेप्ट होता है पुल रिक्वेस्ट का। तो आप गिट में डायरेक्ट मर्ज नहीं कर पाते हो, एक बंदा उसको रिव्यू करेगा, बिना उस रिव्यू के कोड को आप मर्ज नहीं कर पाते हो। तो जो बंदा रिव्यू करता है ना, उसको पता होता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी ऐसी फाइल है जो हम लोग सर्वर पे नहीं भेजेंगे, वो हम किसी टेस्टिंग पर्पज के लिए रखे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं जाएंगी, केवल ये वाला फोल्डर हम हमेशा पुश करेंगे, ये सारी चीजें नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब अगर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर अभी हम चाहें तो जैसे जो हमारे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे सिस्टम में फोल्डर है वहां जाके हम एसआरसी और ये इन एसआरसी फोल्डर को अलग करके अगर उसको विजुअल स्टूडियो से ओपन करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, लेकिन वो आप उसमें कुछ फिर कोड में कुछ चेंज नहीं कर के लिए पाएंगे। जरूरी है ना। हाँ, आपको बिल्ड करने के लिए जरूरी है, काम करने के लिए जरूरी है, डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरी नहीं है।
ओके। नहीं, अच्छा डाउट है। तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी एप्लीकेशन जब हम रन करेंगे, हम जब इसको डिप्लॉय करेंगे ना, किसी सर्वर पे हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तो हम बताएंगे कि देखो इन सब फाइल का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अंदर की फाइल पे ही केवल हम लोग काम करते हैं मैक्सिमम, बाहर पे हम लोग काम ही नहीं करेंगे। अच्छा, karma.config.js क्या है? ये क्या होता है ना कि अगेन जैसे हम लोग का जे यूनिट होता है ना, तो कर्मा क्या होता है, एक आपका एक एक कर्मा है, प्रोटेक्टर है, जैस्मिन है, ये सब अभी हमने छोड़ दिया है। जब हम एंगुलर के टेस्टिंग की बात करेंगे कि एंगुलर में कैसे टेस्टिंग लिखते हैं, अगर एंगुलर में आपको टेस्टिंग लिखना हो तो इन सारी चीजों का यूज किया किया जाता है, तो ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन मैंने बता ही दिया। पैकेज डॉट जेसन में जो कुछ होता है वो नोड मॉड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन के एक और मैंने चीज बताई थी, ये जो यहाँ पे स्क्रिप्ट होता है, एक तो डिपेंडेंसी होती है, डेव डिपेंडेंसी और बिल्ड डिपेंडेंसी। तो डेव डिपेंडेंसीज में देखो, जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं उस वक्त जो डिपेंडेंसी चाहिए होती है उसको डेव डिपेंडेंसी बोलते हैं। और डिपेंडेंसी के लिए मतलब जो आपका फ्रेमवर्क है, जब एप्लीकेशन चलेगा उस वक्त जो डिपेंडेंसी चाहिए होती है उसके लिए डिपेंडेंसी का यूज करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, केवल आप लोग सुन लीजिए, ये फ्यूचर में समझ में आएंगी चीजें धीरे धीरे, बट अभी जानना जरूरी है क्योंकि फाइल्स हैं और फाइल से लोग घबरा जाते हैं कि अरे कौन कौन सी फाइल्स है। उस पर हम कभी कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं, बट जानना जरूरी है। रीडमी हमको पता ही है कि हर फाइल में होता है आजकल रीडमी की, क्या प्रोजेक्ट है, क्या करेगा उस चीज के लिए, उसका कुछ हेल्प अबाउट वगैरह होता है उसके अबाउट लिए द लिखा होता है। अबाउट द प्रोजेक्ट सर, फॉर अबाउट द अबाउट द प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। अबाउट द प्रोजेक्ट लिखिए, अबाउट द डिप्लॉयमेंट लिखिए, जो भी चाहें आप रेडमी में लिख सकते हैं। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन में एक चीज और होती है, वो मैंने बताया था इन लोगों की, ये जो स्क्रिप्ट टैग है, ये तो आपके एप्लीकेशन का नाम है, ये वर्जन है। जो ये स्क्रिप्ट टैग होता है ना, स्टार्ट, तो एनजी सर्व से क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन एक ब्राउजर में ओपन होता है। अगर आपको एनजी सर्व न लिख करके अगर आप केवल एनपीएम स्टार्ट लिखेंगे ना, तभी वो काम करेगा, ठीक है। तो यस सर। इसमें आप अपने आप कुछ कस्टमाइज दे सकते हैं कि रन माई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट आल्सो यू कैन गिव हियर, ठीक है। तो भी वो रन होगा। ओके, तो ये एक स्क्रिप्ट टैग का ये पर्पज होता है। जनरली लोग पूछते हैं कि स्क्रिप्ट टैग में क्या होता है, तो बंदा जो रेगुलर पे काम किया रहेगा ना, एक्चुअल उसको पता रहता है। तो अगर अच्छा अच्छा सर, बंदा है, एनजी सर के पास वहाँ हम लोग लिखते थे मीन हाइफन सर जो हाइफन हम हाई, ओपन। लोग हाँ, हाइफन हाइफन ओपन भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वो हाइफन हाइफन ओपन क्या है कि वो स्टार्ट में ओपन भी कर देगा। मीन सर जो हम लोग टर्मिनल पे सर्वर चालू करने के एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हम लोग स्प्रिंग बूट में टॉमकैट चालू करते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग को एनजी सर्वर यूज करते हैं। हाँ, एनजी सर्व यूज तो करते हैं तो वो ब्राउजर में ओपन कर देता है। और और इसका जो सर्वर होता है ना, वो नोड होता है, ठीक है। हाँ नोड का उसका, हाँ V8, बैक, हाँ, हाँ क्योंकि हम लोग नोड जेएस यूजी इसलिए करते हैं ताकि वो सर्वर हमें प्रोवाइड कर सके, वो बैकएंड एक तरीके से दे सके थोड़ा राइट बहुत। राइट, हाँ हाँ, तो टाइप सर स्क्रिप्ट मतलब उसमें जैसे, चल सके। हाँ तो एनजी सर्व जैसे हम लोग टर्मिनल पे करते थे, उसकी जगह हम लोग एनपीएम स्टार्ट भी कर सकते हैं। हाँ राइट, एनपीएम ओनली स्टार्ट कर सकते स्टार्ट, हैं, हाँ। ये एनपीएम एनपीएम स्टार्ट कर सिर्फ सकते स्टार्ट। सिर्फ हैं। स्टार्ट। और उसमें एक कमांड और होती है कि ये एनपीएम, ये अभी हम लोग एक होता है ना कि अगर ऐसे लिखोगे ना तो ब्राउजर में ओपन होगा, ब्राउजर ऑटोमेटिक नहीं ओपन होता है। तो मैंने इन लोगों को बताया था कि अगर आप उसको ऐसे ऐसे कर दोगे तो हाँ वर्ड ब्राउजर क्या भी ओपन कर ओपन। देगा। अब आप एनपीएम स्टार्ट लिखेंगे ना तो ब्राउजर भी ओपन कर देगा, ये आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, हाइफन हाइफन ओपन कर देंगे तो जैसे लाइव सर्वर चालू करने पे ब्राउजर ओपन हो जाता है, वैसे इसको करने पे ब्राउजर ओपन हो जाएगा। हाँ, ब्राउजर ओपन हो जाएगा, मतलब परफेक्ट। हाँ हमें लोकल होस्ट 4200 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4200 नहीं, वो अपने आप लोकल ओपन कर होस्ट। देता है, वो कर देता हाँ। है, ठीक है। तो अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसे जैसे ये है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं npm स्टार्ट, तो ये बता रहा है कि हम कौन सी कमांड चला रहे हैं, ये ng सर्व चल रहा है। अच्छा, हम यहाँ से भी चला सकते हैं अमन, और इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला सकते हैं। ये अल्टीमेटली हाँ एक कमांड यस प्रॉम्प्ट सर। पे ही चलाएगा। तो यस ये सर, बता हाँ। रहा है कि ऑलरेडी इन यूज है, तो हमको क्या है ना, उसको हाँ किल करना पड़ेगा, ठीक है, या हाँ फिर हमको आपने दूसरे पहले से पोर्ट पे ऑन चलाना। किया होगा। हाँ हाँ, आपने आई थिंक पहले से ऑन कर रखा है, दैट्स वाई। हमने पहले से ऑन कर रखा है। हम दूसरे पोर्ट पे भी बताएंगे कि इसको दूसरे पोर्ट पे कैसे करते हैं, मतलब कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, दूसरे पोर्ट पे भी ये चल जाता है।
देखते हैं ना, इसे बंडल बनाता है, बंडल में बहुत सारी चीजें करता है, व्हाइट स्पेस रिमूव करता है, ट्विस्ट करता है, ये सब इसलिए करता है ताकि हमारे एप्लीकेशन का साइज छोटा हो जाए, क्योंकि ये ब्राउजर है ना, इंटरनेट को कंज्यूम करेगा, तो जो सर्वर से फाइल डाउनलोड होकर के, अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये अब आपको ये खुद से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको खुद से ओपन करना पड़ता है, करेक्ट। जैसे तो सर लोकल होस्ट पे ले जाइए, कर्सर वहाँ ओपन देगा लिंक। हाँ, वो वहाँ ऑल्ट प्लस कर्सर क्लिक से, ऑल्ट प्लस क्लिक का ऑप्शन वहाँ देता है ले फिर। जाने पर भी दे रहा है सर, वहीं से क्लिक हो जाती है। अगर हाँ, वो जो हाँ, लिंक HTTP करके है वहां पे ऑल्ट क्लिक करेंगे तो वो लिंक यूज हो जाती है। राइट राइट, तो ये सब चीज आप लोगों को पता ही है। अब आपको अगर डायरेक्ट ब्राउजर ओपन करना हो तो वो कमांड बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जैसे वहां नहीं सर, नीचे हुआ है तो। नहीं open। ये पैरेलली आप लोग अपने अपने लैपटॉप पे भी करते रहिए, ठीक है ना, बाद में लैपटॉप से ही आप लोग कनेक्टेड है ना, तो पैरेलली आप लोग भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ओपन करना चाहिए इसको। तो सर अभी लिखना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, मैं ये क्या बता रहा है, दिस मीटिंग इज विल रन, ये अपग्रेड करना पड़ता है क्या? हर मीटिंग के लिए 40 मिनट में ही क्लोज हो जाएगा, ऐसा यस नहीं है। सर, एक एक यस सर, एक मीटिंग डिफॉल्टली आई थिंक 40 मिनट्स के होते हैं। बट हम लोग पिछली बार तो हम लोग किए थे, हमारा बहुत काफी लंबा चला था, क्यों जी? हाँ सर। पिछली बार तो हम लोग का लंबा चला था। वो सर हम लोग जब वो हम लोग के कॉलेज में जब उस टाइम बीच में ऑनलाइन क्लासेस होते थे तो वो भी 40 मिनट के बाद एक्सटेंड ही करना पड़ता था। एक सेकंड ना, एक सेकंड। ये आप लोग अपने पे करिए, मेरे में ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है यार, ये ओपन होना चाहिए। देख रहे हैं सर आप अपने में। एक सेकंड ना, मेरे इतने सारे ब्राउजर ओपन है ना, इस वजह से पंगा कर रहा है। लेट मी क्लोज एवरीथिंग। सर मेरा ओपन हो गया। अरे मेरे में इतना सारा ओपन है, वो है ना इसलिए। अभी 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 मैं अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं सर, अभी आप दिख रहे हैं। यस सर। एक सेकंड, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, उस वक्त इतना सारा वो था ना, इसलिए उसको क्लोज किया था। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, ये तो मैं, ये ये मेरा दे वो लीजिए है, सर। ये जो मैं आप लोग को वो दूसरे बात कर रहा था ना, वो उसके लिए था वो। तो अभी क्या है, टर्मिनल पे जाते हैं, ठीक है, एंड मैंने क्या बोला था, npm स्टार्ट लिखो, तो अब ये ओपन हो जाना चाहिए आपके ब्राउजर में। यस सर सर। सर सर वो जो मेरे वाले में सर NG सर वो ओपन, ये जो लिख रहा है इसी पे आके अटक गया है।
नहीं, वही वही तो मुझे चेक करना है आपका एप्लीकेशन, वो थोड़ा स्लो होगा, अभी होगा, देखिए मेरे में भी रुका है, वो थोड़ा एंगुलर में टाइम लगता है। ओके ओके ये देखिए इसने ओपन कर दिया, करेक्ट, ठीक, ऑटोमेटिक ब्राउजर ओपन किया इसने। ठीक है ना? सो यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको पता था इनफैक्ट, ये केवल अमन के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये सबको पता होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है किसी को तो अभी पूछो। ठीक है, पैकेज तो हम लोग बाहर का स्ट्रक्चर भी समझ ले। अच्छा, टीएस कॉन्फ़िग जितने हैं ना, ये सब कुछ टाइप स्क्रिप्ट के लिए है, तो इसको अगर, और स्पेक जो क्या होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये जितना भी है ये सारा इट्स वेरी पर्टिकुलर टू टीएस कॉन्फ़िग, जिसपे हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के लिए। और अब इसके अंदर जाते हैं, अब इसके अंदर वाले फोल्डर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इन लोगों ने बताया था ये मेन कैसे काम करता है अंदर, अमन? सर इन्होंने वरीशा और संस्कृति और थोड़ा बलंदर ने मुझे ये बताया था कि एसआरसी के अंदर जो ऐप होते हैं, हमारा जो मेन काम होता है हम ऐप में ही करते हैं। और ये जो ये इंडेक्स जो एचटीएमएल इन्होंने बताया था कि ये हमारा मेन होता मतलब ये हमारा, इसको ऐसे तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट पेज की तरह काम करता है, बट हम लोग जो चेंजेस करते हैं वो ऐप में करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ तो सही बताया था इन लोगों ने। अब थोड़ा थोड़ा और बता देते हैं ताकि इन लोगों का भी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। पहले फोल्डर फाइल का स्ट्रक्चर बताते हैं। ऐप में आई थिंक अंदर का स्ट्रक्चर मैंने इन लोगों को भी शायद बताया नहीं था, क्या बताया था? सर अब मुझे जिस तरीके से ये लोग बता रहे थे मुझे तो लग रहा है कि बताया था, बट अब एक बार पूछ लीजिए। और नहीं, बताया था, ये एसेट्स बताया था, इसमें इमेज वगैरह अगर होती है तो एसेट्स के अंदर रखते हैं। हाँ, इमेज वगैरह ऐड करना तो करते हैं। हम अच्छा लोगों को नहीं बताया गया था सर, हम बलिंदर को। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वही आपको और तुम, वरीशा को बताया। हाँ हाँ, तुम लोग अलग, वही मुझे लग रहा था कि कहीं तो मिस हुआ है। तो अभी सब लोग घर पहुंच गए या फिर शैलेश यहीं पे है, लखनऊ में ही? यही है सर, अभी हम ठीक है, अभी तुम आना मोदी किसी जी दिन आ रहे हैं, तुमको। उनसे मिल लेंगे सर। कल जाएगा कल जाएगा। कल जा रहे हो क्या तुम? हाँ सर। कल ही जा रहे हो? तो अगर चाहो टाइम एक रहेगा तो आना, हमसे मिल लेना कभी भी, दिन में कभी भी आना। 1 घंटे का बस मेरा एक मीटिंग रहेगा, बाकी हम मैनेज कर सकते हैं टाइम। सर एक क्लास किया जाए क्या, कल परसों चले जाएंगे। अरे कभी भी, एनी टाइम। तो एसेट्स के अंदर सर क्या है ना, हमारी सर सारी इमेज होती हैं। ये परसों ही जाएगा सर। क्लास ऐसे करने के हम लिए तो तीनों लोग आ रहे हैं सर, हम बलिंदर और मैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि अब इतना ज्यादा ठंड हो रहा है, और दूसरा क्या है ना कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं यार, तो क्यों रिस्क Yes, लेना। sir. हम लोग अभी देखें कितनी प्रॉब्लम हुई है, करेक्ट ना? जिसके घर नहीं सर, में, क्लास होगी तो पांचों लोग की तब तो एक साथ होगी। ऐसे हाँ घर आके क्लास नहीं होगी। अगर आप हाँ कल आप फ्री है तो ऑनलाइन ही आप 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास ले लो, भले शेड्यूल में नहीं है तो क्या होगा। हाँ अगर नहीं हम फ्री लोग है तो सर से मिलने तो जाएंगे ही ना, हम शैलेश से। आप सर से मिलने जाओगे लेकिन क्लास नहीं करोगे भाई। हाँ फिर यही होता है, 2 लोग को बताया गया 2 लोग को नहीं बताया गया। हाँ, सही है, हमको वही लग रहा था कि किसी का तो मिस है। तो जो एसेट्स होता है ना, एसेट के अंदर क्या होता है, मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ ना कि जो लोग बहुत एंगुलर पे काम भी करते हैं ना, उनसे आप पूछेगा ये चीजें उनको पता नहीं होती हैं। और जो इंटरव्यू में जब किसी को पूछना होता है ना, तो यही सब चीजें पूछता है। बाकी तो कोड सब लेवल होता है यार, सब लोग कर लेते हैं, ये जो कोर चीजें हैं ये आदमी को पता होनी चाहिए। तो अब एसेट्स, कोई पूछ देगा एसेट्स फोल्डर क्या होता है, क्यों एंगुलर देता है, अब पता चला इतना काम किए हैं और यही नहीं बता पाए। तो एसेट्स क्या होता है ना, इसमें हम सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। स्टैटिक इंफॉर्मेशन की जैसे कोई लोगो होगा, कोई इमेज होगी, वो सारी चीजें हम एसेट्स में रखेंगे। ठीक है, मीन्स अगर हमें अपना फ्रंट पेज, अगर मेरी वेबसाइट कोई ओपन, मेरा एप्लीकेशन कोई ओपन करता है, फ्रंट पेज पे अगर मुझे लाइक तमसोमा ज्योतिर्गमय का अगर हमें लोगो लगाना है तो वो लोगो हम कहाँ एसेट में डालेंगे? एसेट देख, डाल तो कहीं भी सकते हैं, बट एसेट में रखा जाता है। जो सही तरीका है कि उसको एसेट में रखिए। सर हम लोग एसेट में अपना पिक रख देंगे और फिर हाँ उसके हाँ, बाद तुम अपना एसआरसी सोर्स रख के इनका एक अच्छा फोटो खींच अगर दिया है किसी ने, तो इनके रिज्यूमे से लेकर के हर जगह वही फोटो लग रहा है। हमको लग रहा है मैट्रिमोनी पे भी वही फोटो जाएगी। सर वो
सर कल गए थे डुप्लेक्स में हम इंटरव्यू देने, वहां भी वही पिक लगा था। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है, ब्लेजर ब्लेजर वगैरह पहन। सर 1.5 साल की एग्रीमेंट करा रहा था सर इनसे। 10th और 12th का सर मेरा मार्कशीट मांग रहा था, कह रहा था 1.5 साल का एग्रीमेंट होगा। सर कल सर, SCL में सर इनका हिंदी में- इंटरव्यू है। सर हिंदी में इंटरव्यू कर लिया, बहुत मजा आया था सर। बट सर हिंदी में इंटरव्यू कर लिया था, मजा आया, चलो अच्छी बात है। तो एसेट जो होता है ना, एसेट के अंदर हम क्या होते हैं, अपनी जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, ये फेव आइकॉन करके होता है, ये जो जो आपके यूआरएल में एक जो छोटी सी पिक्चर आती है ना, वो ये होता है। अगर इसको हटा देंगे ना तो एक वार्निंग देता है आपका ये। तो ये फेव आइकॉन की जो होती है, ये यूआरएल में, जैसे यहाँ पे अगर ये जो है ना, यहाँ ये इस चीज के लिए होता है, ये जो है ना, ये जो है ना, ये इस चीज के लिए होता है, ये जो है इस चीज के लिए होता है। ठीक है, सर ये इंडेक्स तो डॉट ये तो बहुत जगहों पे